नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल क्लास 9th और 10th का सबसे आसान और इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। बोर्ड के लिहाज से भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए पढ़ते हैं पॉलिनोमियल आपके अपने चैनल DS मैथमेटिक के साथ। इंट्रोडक्शन में जानते हैं कौन है वो महारथी जिसने सबसे पहले पॉलिनोमियल और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को आप तक और हम तक पहुंचाने की कोशिश की। वो है द ग्रेट ग्रीक मैथमेटिशियन डियोफेंटस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन से लेकर क्या है एप्लीकेशन पॉलिनोमियल के, जीरो जो पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो एक एक करके हम सभी टॉपिक डिस्कस करेंगे। पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले पढ़ना होगा कुछ बेसिक्स, वो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? Algebraic expression is the combination of variable, coefficient and constant with the algebraic operation. It means with the addition and subtraction sign. Like 3x square plus 8x minus 2 is an algebraic expression. Now, where x is the variable, 3 is the coefficient of x square, 8 is the coefficient of x, and minus 2 is the constant. Here the algebraic operation is plus sign and minus sign. Now, what is the variable? The first term is what is the variable? The variable is the unknown value in the algebraic expression whose value is not fixed, like x, y, p, q, r are the variable. The next topic is what is the term? Term is a part of algebraic expression separated by the algebraic sign like addition and subtraction. In the polynomial or in the algebraic expression 3x square plus 8x minus 2, there are three terms. 3x square is the one term, 8x is the second term, and minus 2 is the third term. The next topic is the coefficient. The coefficient is the real number which is multiple of the variable is called coefficient. Like 3x square plus 8x minus 2, where variable is x. So multiple of x square is 3. So highest power in this algebraic expression is x square means 2. So 3 is called leading coefficient and other coefficients are known as general coefficient. Constant is a term whose value is fixed in the polynomial. In other words, a term without a variable is known as constant. The given expression is 2x cube plus x square minus 5x plus 12. This is the expression. So in this expression, x is the variable. In another, what are the coefficient? Coefficient 2 is the coefficient of x cube, 1 is the coefficient of x square. यदि कोई मल्टीप्लाई में लिखा नहीं आता है तो मल्टीप्लाई में उसको 1 मान के चलते हैं. Minus 5 is the coefficient of x and 12 is the constant in this expression. Now we start with the definition of the polynomial. As the word shows, poly plus nomial. Poly means many, nomial means term. In simple word, the combination of many terms is known as polynomial. But the standard definition is an algebraic expression in which the power of variable is whole number is known as polynomial. Polynomial is represented by p bracket x. It means
P means polynomial, X is the variable. It means Px means polynomial of variable X. The standard polynomial is written by Px equals to a naught x power n plus a1 x power n minus 1 plus a2 x power n minus 2 dot 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 plus last is a power n. This is the standard polynomial equation. इस स्लाइड में पॉलिनोमियल और नॉट पॉलिनोमियल को डिफरेंशिएट करेंगे. पॉलिनोमियल डिस्कस कर चुके हैं, नॉट पॉलिनोमियल क्या होता है. फर्स्ट पॉलिनोमियल 2x² प्लस अंडर रूट एक्स. Under root x means power half. Half is not whole number, so this is not polynomial. In second polynomial, power is -2, that is negative. Negative is not a part of whole number. In third polynomial, 2 divided by x, it means power is -1. 2x power -1, which is also negative. X cannot be a exponent, so this is not a polynomial. तो ये जो सभी जो है वो नॉट पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल है. नॉट पॉलिनोमियल की खास बात यह है कि उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती है. पॉलिनोमियल को क्लासिफाई दो कैटेगरी में किया गया है. फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, a polynomial which having one term is called monomial. Example are like 3x. A polynomial which having two terms is called binomial, like 3x plus 5, x square plus y. A polynomial which having three terms is called trinomial. Tri means three, nomial means term. A polynomial which having three terms is called trinomial, like x square plus 2x plus 6. Total 3 terms are there. Now, a polynomial which having more than 3 terms is known as polynomial. On the basis of the degree, polynomial are divided into this category. First is linear polynomial. A polynomial which having degree 1 is called linear polynomial, like 3x plus 5, in which power of variable, the highest power of variable is known as degree. So degree 3x plus 5, here power of x is 1, so it is called linear polynomial. Second is quadratic polynomial. A polynomial which having degree 2 is called quadratic polynomial. Next is cubic polynomial. A polynomial having degree 3 is called cubic polynomial. Next is biquadratic polynomial. A polynomial which having degree 4 is called biquadratic polynomial. One important polynomial is constant polynomial. What is the constant polynomial? A polynomial which having degree 0 is called constant polynomial. नाउ द एप्लीकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल. जो अपन पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं उसके क्या यूजेज है. तो एप्लीकेशन ऑफ पॉलिनोमियल में सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं. तो एक इक्वेशन होती है जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करती है. उसमें जो रिलेशन होता है वो लीनियर रिलेशन होता है. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो जो ब्रीज बनाते हैं जिसके अंदर पैराबोलिक इक्वेशन बनती है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन होती है. उसके बाद जो रोलर कास्टर होता है उसके अंदर जिस तरह से कर्व बने होते हैं तो ये वेरियस पॉलिनोमियल के बने हुए होते हैं. तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे जो डिज़ाइन बनती है, कर्व बनते हैं इस वर्ल्ड में. जितनी भी डिज़ाइन में जो कर्व नेचर की जितनी भी डिज़ाइन है वो पॉलिनोमियल से बनती है. वन इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. The highest power of variable in any polynomial is called degree of polynomial. Condition is जब डिग्री फाइंड करते हैं तो वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होना चाहिए. एक एग्जांपल है -x⁴ प्लस x² प्लस x. इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 4, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 4. इस स्लाइड में ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री
टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल विद एग्जाम्पल गिवन है जो अपन डिस्कस कर चुके हैं, आप इसको देख सकते हैं। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम जीरो, दैट वैल्यू ऑफ एक्स इज नोन एज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में एक्स की जगह क्या वैल्यू पुट करें कि पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, उस पर्टिकुलर वैल्यू को जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, क्लास 9th के अंदर लीनियर पॉलिनोमियल है और क्लास 10th के अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोज कैसे फाइंड करते हैं वो गिवन है। कोई भी इक्वेशन होती है पॉलिनोमियल की, उसको पहले इक्वल्स टू जीरो लिखो, फिर उसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद जो x की वैल्यू आएगी वो आपका जीरो होगा। लीनियर पॉलिनोमियल में जीरो कैसे फाइंड करते हैं वो समझते हैं। आपके पास एक पॉलिनोमियल है px इजिकल टू 2x प्लस 1। सबसे पहले px पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू जीरो रखेंगे। इट मीन्स 2x प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो, 2x इक्वल्स टू माइनस 1, x इक्वल्स टू माइनस 1/2। सो वैल्यू ऑफ x is -1/2. It means zero of this linear polynomial will be -1/2. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जिसकी डिग्री 2 होती है उसका जीरो कैसे फाइंड करते हैं। एक इक्वेशन है अपने पास x² प्लस 7x प्लस 10। इस पॉलिनोमियल को पहले आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज करेंगे, तो आपके फैक्टर आएंगे x प्लस 2 और x प्लस 5। अब इन फैक्टर को इक्वल्स टू क्या करेंगे, जीरो। तो यहाँ तो हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल्स टू जीरो, इट मीन्स x इक्वल्स टू -2। दूसरा फैक्टर x प्लस 5 इक्वल्स टू जीरो, इट मीन्स x इक्वल्स टू -5। तो यहाँ पर x की दो वैल्यू आई, क्योंकि डिग्री 2 है तो इसकी दो वैल्यू आएगी, एक x की वैल्यू -2 और एक -5। इट मीन्स जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी -2 एंड -5। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोज को अल्फा और बीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स अल्फा इक्वल्स टू -2 एंड बीटा इक्वल्स टू -5। किसी भी पॉलिनोमियल में एक पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है और पता करना है इसके कितने जीरोज पॉसिबल है, तो उसको ग्राफिकल मेथड से पता कर सकते हैं। कैसे, इस पॉलिनोमियल का एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये ग्राफ या कर्व एक्स एक्सिस को कितनी बार टच करता है या कट करता है, उतने जीरो उस पॉलिनोमियल में पॉसिबल होंगे। वो एक एग्जांपल से समझते हैं। एक्सरसाइज 2.1 क्लास 10। अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक इज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल गिवन है px इक्वल्स टू x प्लस 3। x की जगह कोई रियल नंबर पुट करते हैं तो उस पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू आती है, उसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। एक एग्जांपल से समझते हैं। द पॉलिनोमियल इज 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है x इजिकल टू 0 पे। तो एक पॉलिनोमियल गिवन है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, पुट x इजिकल टू 0। जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट करो, तो 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3। सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा 3। सो वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी 3। क्लास 9 की एक्सरसाइज 2 का मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम का सबसे पहले हम देखेंगे प्रूफ और उसके बाद देखेंगे कि इसका एग्जाम्पल। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, लेट px बी एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेट a बी एनी रियल नंबर। लेट कर लेना हमें कोई px हमारा पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर या तो 1 के इक्वल है या 1 से ज्यादा है, और a हमारा कोई रियल नंबर है। इफ px इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पोलिनोमियल x माइनस a देन द रिमाइंडर इज pa। अगर px जो पोलिनोमियल है ये इसको डिवाइड किया जाएगा x माइनस a लीनियर पोलिनोमियल से, तो रिमाइंडर क्या होगा pa। ठीक है, अगर इससे डिवाइड करेंगे x माइनस a तो रिमाइंडर होगा pa, यानी कि x की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, a पुट करेंगे। ठीक है, और उसे सोल्व करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा।
तो ये a क्यों पुट करेंगे, क्योंकि यहां से हम x माइनस ए इक्वल्स टू में 0, इसको रखेंगे हम x माइनस ए इक्वल्स टू में 0 और यहां से x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू जो आएगी उसी को हम x की जगह पर पुट करेंगे और उसे सोल्व करने के बाद रिमाइंडर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो x माइनस ए, इसे सोल्व करेंगे तो x a को दूसरी तरफ भेजेंगे माइनस a को, तो हो जाएगा a। तो x की जो भी वैल्यू आएगी उसको पुट कर देंगे पॉलिनोमियल में और हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, यही इस थ्योरम का कॉन्सेप्ट है। इसको देख लेते हैं, प्रूव करके देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि डिविडेंड किसके इक्वल होता है, डिवीजर मल्टीप्लाई में क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। तो डिवाइड करना कुछ इस तरह से होता है, अंदर लिखा जाता है डिविडेंड को, यहां पर होता है डिवीजर, यहां पर क्वोशिएंट और यहां पर रिमाइंडर। तो px जो है हमारा ये पॉलिनोमियल, इसको हम डिवाइड करते हैं x माइनस ए, यानी कि ये डिवीजर है x माइनस ए। तो जब डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा qx, क्वोशिएंट आएगा qx और कुछ स्टेप्स करने के बाद बचेगा रिमाइंडर r। ठीक है, रिमाइंडर rx नहीं होगा क्योंकि x यहां पर डिग्री कितनी है x की 1, तो डिग्री 1 होने के कारण x जो है वो पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। लास्ट में एक रियल नंबर बचेगा हमारे लिए जिसे हम रिमाइंडर कहेंगे। ठीक है, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, px को, px क्या है डिविडेंड, तो px को हम लिखेंगे px इक्वल्स टू में डिवीजर, डिवीजर क्या है x माइनस ए, तो x माइनस ए मल्टीप्लाई में क्वोशिएंट, क्वोशिएंट क्या है, क्वोशिएंट है qx, तो qx प्लस में रिमाइंडर r। तो ये हो जाता है हमारा कॉन्सेप्ट। अब रिमाइंडर क्या होगा, pa यानी कि x की जगह पर हम क्या पुट करें, a पुट करेंगे। तो ठीक है, यहां पर x की जगह पर a पुट करेंगे, तो x की जगह पर a पुट करके देखते हैं। p x की जगह पर हमने रखा a इक्वल्स टू में, यहां पर भी x जो है इसकी जगह पर भी हमने रख दिया a, तो a माइनस a मल्टीप्लाई में q x की जगह पर फिर से a प्लस में r। तो यहां पर a माइनस a करेंगे, a में से a को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई में qa प्लस में r। तो 0 को qa में मल्टीप्लाई करेंगे, जब 0 को qa में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस में r और फाइनली हमारा क्या बचेगा, r, रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। अब रिमाइंडर थ्योरम का एक एग्जांपल देख लेते हैं, जहां पर px एक पॉलिनोमियल है x की क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 5। इसको हमें डिवाइड करना है x प्लस में 1, यानी कि x प्लस में a यहाँ पर क्या है 1। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल है, a हमारा यहाँ पर 1 है, यानी कि a कोई रियल नंबर है। ठीक है, तो 1 रियल नंबर है। तो हम इसे सिंपली पहले डिवीजन मेथड से देखेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड, और उसके बाद अप्लाई करेंगे इस पे रिमाइंडर थ्योरम। तो चेक करेंगे दोनों कंडीशन में हमारा रिमाइंडर सेम आता है या नहीं। तो ये पॉलिनोमियल है x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, इसे लिखेंगे अंदर x की क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 5, और इसे डिवाइड कर देंगे x प्लस 1 एक लीनियर पॉलिनोमियल से। रिमाइंडर थ्योरम जो है वो सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल पर ही अप्लाई होती है। तो इसे अगर इस तरह से आपको डिवीजन करना आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया गया है, यहाँ पर मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। उस वीडियो को आप देखें, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो x प्लस 1 को सबसे पहले हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x की क्यूब, और प्लस में x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर। माइनस कर लेंगे, यहाँ पर x की क्यूब में से x की क्यूब माइनस हो जाएगी, ये आ जाएगा 0, और यहाँ पर आएगा जो ये प्लस का साइन है यहाँ पर लगाएंगे माइनस, तो माइनस आएगा 3x स्क्वायर माइनस में 3x स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा माइनस में 4x स्क्वायर, और इस माइनस x को ले आएंगे नीचे। ठीक है, अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -4x से मल्टीप्लाई करेंगे, -4x से मल्टीप्लाई -4x से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -4x स्क्वायर, और -4x से 1 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा माइनस में 4x। माइनस करेंगे इसमें से 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जो है आएगा 3x। ठीक है, 3x, और यहाँ ले आएंगे +5 को ले आएंगे नीचे, ये आ गया +5 यहाँ पर। अब x प्लस 1 को मल्टीप्लाई किससे करें हम, जो हमारा 3x है तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 3x, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 3 1 जा 3, तो ये आ जाएगा
3x से 3x कैंसिल और 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो आएगा 2, यानी कि हमारा रिमाइंडर क्या आया, r इक्वल्स टू 2। अब हम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करके देखते हैं कि हमारा रिमाइंडर वाकई में ही 2 आता है रिमाइंडर थ्योरम से या नहीं। तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले हम, तो x प्लस में 1 इक्वल्स टू में 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आ गई -1, और जो ये -1 आया है x की वैल्यू, इसको हम पुट करेंगे इस x की जगह पर, ठीक है, इस वाले पोलिनोमियल में। तो पोलिनोमियल है px, x की जगह पर हम -1 रखते जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर ये px है, यहां पर मैं रख देता हूं -1 इक्वल्स टू में x की क्यूब यानी कि -1 की क्यूब, माइनस में 3x स्क्वेयर यानी कि 3 - 1 का स्क्वेयर, माइनस में -1, माइनस में x है तो x की जगह पर रख दिया मैंने -1, ठीक है, और प्लस में 5। अब करेंगे इसे सोल्व, तो -1 की क्यूब होगा -1 ही होता है, ठीक है। उसके बाद 1 का -1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -3, और उसके बाद माइनस प्लस 1 और प्लस में 5 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। इसे थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, प्लस वाले 5 + 1 दोनों प्लस वाले हैं तो ये हो जाएंगे प्लस में, तो 5 + 1 6 हो गया, और -1 और -3 दोनों माइनस के हैं तो ये आपस में प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन रहेगा माइनस का ही, तो -3 और 1 4, तो ये आ जाएगा -4, 6 में से 4 को माइनस करेंगे आ जाएगा 2, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम का जो उद्देश्य है वो यही है कि हमें डिवीजन, ये लॉन्ग डिवीजन है, इससे हमें बचना है, सिंपल जो x की वैल्यू निकालनी है हमें और इसमें पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहां पर भी 2 आ रहा है रिमाइंडर और यहां पर भी 2 आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज फैक्टर थ्योरम। चेक करना है कि एक पर्टिकुलर जो पॉलिनोमियल है वो दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। लाइक x + 1 इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल और नॉट। चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो फैक्टर चेक करना है उसको जीरोस फाइंड करेंगे, उसको इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1। जो -1 वैल्यू है वो मेन पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। मेन पॉलिनोमियल में पुट करने पर यदि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 आता है तो वो टर्म मेन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, अदरवाइज उसका फैक्टर नहीं होगा। क्लास 10th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। What is the standard quadratic equation? ax² plus bx plus c equals to 0 where a is not equals to 0। जो लीडिंग कोफिशिएंट होता है किसी पॉलिनोमियल का वो 0 नहीं होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोज। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 2 जीरो पॉसिबल है तो उसके अल्फा और बीटा जो होंगे उसके 2 जीरोज होंगे। तो आपको रिलेशन डिफाइन करना है, जो अल्फा और बीटा है ये तो जीरोज है, ए और बी कोफिशिएंट है और सी है वो कांस्टेंट है। तो जो कोफिशिएंट, कांस्टेंट और जीरोज में क्या रिलेशन है वो आपको बताना है। द फर्स्ट रिलेशन इज सम ऑफ 0 इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा is equals to -b upon a. The second relation is the product of 0 is equals to constant divided by coefficient of x². It means alpha into beta equals to c upon a. This is the very very important topic. इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो सबसे पहले आपको फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करके उसके जीरोज फाइंड करने हैं। उस जीरोज का नाम दे देना अल्फा और बीटा। उसके बाद उस पॉलिनोमियल में ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है और इस फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूले में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यदि इक्वल हो जाते हैं तो ये वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया।
एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। क्या है, x का कोफिशिएंट है b, तो हम इसे लिखेंगे माइनस में b अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट है a, तो सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होगा, माइनस b बाई a के इक्वल होगा। ठीक है, इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अगर हम उन जीरोज का प्रोडक्ट यानी कि उन जीरोज को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है c, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a, तो हम कह सकते हैं c बाई a। प्रोडक्ट जो होगा जीरोज का वो होगा c बाई a। ठीक है, ये रिलेशन होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के लिए। अब जो ये जीरोज आए हैं इनका एक एग्जांपल देख लेते हैं इनको वेरीफाई करने के लिए। तो एग्जांपल है यहाँ पर x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2 इक्वल्स टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो इसके जीरोज को फाइंड करेंगे हम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसके फैक्टराइजेशन अगर आपको आते हैं, आप क्लास 9th में ये सब चीजें कर चुके होंगे। अगर आपको आते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं आते हैं तो कमेंट कीजिए, उसके लिए फिर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो इसके फैक्टर्स करेंगे, इसके फैक्टर्स कुछ इस तरह से होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, तो पहले जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें से हम कॉमन लेंगे। कॉमन यहां से क्या आ रहा है, एक्स, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस में 1, और उसके बाद क्या है 2x प्लस 2, तो इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से कॉमन ले सकते हैं हम 2, तो ब्रैकेट में आएगा x प्लस में 1। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए x प्लस 1 और x प्लस में 2। तो फैक्टर्स हो गए x प्लस में 1 और x प्लस में 2, और इन्हीं फैक्टर्स से हम जीरोज निकालेंगे। ठीक है, जीरोज का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू, तो x की वैल्यू यहां से क्या आएगी, x प्लस में 1 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस प्लस 1 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा -1, और इसी तरह से x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x के अलावा जो भी है उसको दूसरी तरफ भेजेंगे, यानी कि +2 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा -2। तो दो जीरोज जो आए हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के वो है -1 और -2। अब इसे वेरीफाई करते हैं, जो भी ये रिलेशन दे रखा है सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, -b बाई a, तो सम -1 प्लस में -2, तो सम करेंगे इनका -1 प्लस में -2। अगर इनका सम करेंगे तो किसके इक्वल होना चाहिए, -b बाई a, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 3, तो यहाँ पर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x है तो -3 लिखेंगे इसे। ठीक है, -3 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। ठीक है, तो 1, और डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो -1 प्लस माइनस माइनस, तो -1 -2 इक्वल्स टू -3। डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे और साइन रहेगा माइनस का ही, तो -3 इक्वल्स टू -3। ये सम ऑफ जीरोज वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो रिलेशन है, ये तो हो गया यहाँ पर वेरीफाई, क्योंकि दोनों इक्वल आ रहे हैं। अब देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का रिलेशन। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि मल्टीप्लाई, तो -1 मल्टीप्लाई में -2, तो -1 मल्टीप्लाई में -2, ये किसके इक्वल होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म यानी कि c अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी कि a, मतलब c बाई a। तो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर 2, तो इसकी किसके इक्वल होगा, 2 अपॉन में x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि a, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, और डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो माइनस माइनस प्लस, और 2 1 जा 2, तो ये आएगा प्लस का 2 इक्वल्स टू 2 अपॉन में 1 यानी कि 2, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी है वही इक्वल आ रहा है। ठीक है, ये रिलेशन होता है, आपको ये जरूर ध्यान रखना है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए, क्योंकि ये एग्जाम में आपसे बहुत बार पूछा जाएगा।